درخت کے نیچے بیٹھے ابھی کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ میں نے عجیب و غریب کالے مرغولے فارم ہاؤس کے دروازے پر دیکھے، اور ان مرغولوں میں ایک ڈریکولا نما گدھ تھا جو کافی بڑا اور خطرناک لگ رہا تھا، جبکہ باقی مرغولے اس کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ پھر اس گدھ نما نے کوئی منتر پڑھا جس سے فارم ہاؤس کی دیوار پھٹ گئی اور وہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے بھی خدا کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد کو میں نے نہیں بلایا کیونکہ اس کے پاس تعویذ نہیں تھا، اگر وہ ساتھ چلتا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تمام ورد اچھے سے دوبارہ یاد کیے جو مجھے بابا ریاض شاہ نے بتائے تھے۔ پہلے اول آخر درود پاک کا ورد کیا، پھر خود پر پھونک مار کر اپنا مکمل حفاظتی حصار قائم کیا، اور پھر اس ٹوٹی ہوئی دیوار کی جانب چل پڑا۔ مگر جیسے ہی میں نزدیک پہنچا دیوار جڑ کر برابر ہو چکی تھی اور اندر جانے کا راستہ مکمل بند تھا، جبکہ عمارت کا گیٹ کافی اونچا اور آہنی تھا، جبکہ اس کے اوپر حفاظتی باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ اگر میں دیوار پھلانگتا تو زخمی ہونے کا خطرہ تھا۔ پھر مجھے بابا کے دیے ہوئے تعویذ کا خیال آیا۔ میں نے اس تعویذ کو اتار کر اپنے ہاتھ پر مضبوطی سے باندھا، اس پر اسم اعظم بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، پھر سورۃ ناس اور آیت الکرسی کا ورد کر کے دیوار پر پھونک ماری، ساتھ ہی تعویذ بھی دیوار سے مس کیا، جس کا اثر فوری طور پر یہ ہوا کہ دیوار اسی طرح پھٹ گئی جیسے جادو سے پھٹی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر کافی ہیبتناک تھا۔ کالے دھوئیں بڑے ڈریکولا کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کالے مرغولوں نے تقریباً تمام انگریزوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب صرف مسٹر جوزف بچا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ بڑا ڈریکولا گرد آہستہ آہستہ مسٹر جوزف کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر وہ جوزف کو چھونے میں ناکام رہا۔ پھر اس نے اپنا رخ بلی کے پنجرے کی جانب کیا۔ ڈریکولا گرد نے اسے اپنی چونچ میں دبوچ لیا۔ پھر وہ غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنے ہی لگا تھا کہ میں ایک قدم آگے بڑھا۔ خبردار، اگر بلی کو لے کر بھاگے تو بھسم کر دوں گا، میں نے روبدار آواز میں للکارا۔ میری آواز سن کر ڈریکولا بہت زور سے خوفناک آواز میں دھاڑا۔ منہ کھولنے کے نتیجے میں بلی اس کے منہ سے گر پڑی اور وہ فوراً جمپ لگا کر دیوار کی اس طرف گئی جہاں دیوار پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ واپسی کے لیے میں نے اسے بند نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس شیطان پر وار کرتا، وہ مرغولوں کی صورت اختیار کرتا ہوا وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ بلی کے پیچھے گیا ہے، کیونکہ میناکشی کی جان کو اب پہلے سے زیادہ خطرہ ہے۔ میں اس کے پیچھے واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ مسٹر جوزف نے مجھے پکارا۔ رکو، کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جسے تم نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ کون؟ میں آپ ٹھیک سے سمجھا نہیں اور نہ ہی آپ کو پہچان سکا، جوزف نے حیرت سے پوچھا۔ میں بستی مستان خان کا غوث شاہ ہوں، آپ سے بعد میں بات ہوگی، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ مگر آپ وہ لگتے تو نہیں ہیں، مسٹر جوزف نے مجھ میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میں حلیہ بدل کر آیا ہوں یہاں۔ پھر میں نے اپنی وگ اتار دی۔ جوزف کی آنکھوں میں میرے لیے حیرت تھی۔ مسٹر جوزف، آپ سے کافی حساب کتاب کرنا ہے۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی اسے قید کر کے، حالانکہ تم سندری سے جان چکے تھے کہ وہ بلی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اسے خواہ مخواہ قید میں رکھا۔ اب آپ کی وجہ سے وہ شیطان اس کے پیچھے گیا ہے جو کہ اسے یقیناً مار دے گا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے ملنے سے انکار کیا، مجبوراً مجھے بھیس بدلنا پڑا یہاں آنے کے لیے۔ ابھی آپ سے بعد میں باتیں ہوں گی، پہلے اس بڑے شیطان کو قابو کرنا ہوگا جو برائی کی اصل جڑ ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکا نہیں، بس یہی سوچ رہا تھا کہ میناکشی اب پتہ نہیں کہاں ہوگی، کیا وہ اپنا دفاع کر پائے گی اس شیطان کے خلاف۔ انہی سوچوں میں فارم ہاؤس سے باہر آ گیا۔ میناکشی بہت خوش تھی آزاد ہو کر۔ فارم ہاؤس سے نکل کر وہ بہت تیزی سے بھاگی، اتنا بھاگ سکتی تھی۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا جہاں بہت سی رکاوٹیں اس کے راستے میں آئیں، مگر اس نے سب رکاوٹیں عبور کر لی۔ جینے کے لیے مسلسل بھاگتی رہی، مگر بھاگتے ہوئے فوراً پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی رہی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر دوبارہ اس کے پیچھے نہ آئے۔ جب کافی دوڑ چکی تو وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید کوئی شکار ہاتھ لگ جائے، مگر اس پہاڑی علاقے میں شکار ملنا ناممکن تھا۔ زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اسے پیاس بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر پانی کی تلاش کے لیے نظریں دوڑائیں۔ دور پہاڑی علاقے میں سے ایک عمارت نظر آئی، وہ اس کی جانب بڑھنے لگی، شاید وہاں اس کے کھانے کے لیے کچھ ہو۔ وہ دوڑ لگانے ہی والی تھی کہ اسے دور سے اپنی جانب بڑھتا ہوا کالا دھواں دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گئی گدھ اور اس کے شیطانی چیلے اس کی جانب آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً عمارت کی جانب دوڑ لگا دی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھی وہ عمارت۔ وہ وہاں پہنچ کر خود کو اس جادوگر سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ جتنا بھاگ سکتی تھی بھاگتی رہی، جبکہ کالے مرغولے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ جیسے ہی وہ اس عمارت کے نزدیک پہنچی، وہ ایک مسجد تھی جس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، جبکہ مسجد کا صحن کافی کھلا اور کشادہ تھا۔ وہ بلا سوچے سمجھے مسجد میں کود گئی۔ اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے باہر نظر کی جہاں کالے مرغولے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، مگر اب وہ مسجد سے باہر ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ خوش ہو کر سمجھ گئی کہ یہ کسی کی عبادت گاہ ہے جس میں منوس منوہر جادوگر داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے شیطانی چیلے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تھوڑا سا اونچا اٹھایا اور چھوٹی سی دیوار سے باہر جھانکا جہاں منوہر شیطانی شکل میں موجود اسے گھور رہا تھا۔
फिर इसने शैतानी हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा, मीनाक्षी मस्जिद से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें दोबारा इंसान बनाने आया हूँ। मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो अपनी इंसानी शक्ल में आकर खड़ा हो गया और बार बार मीनाक्षी को बुलाने लगा कि वो इसकी बात मान ले और मस्जिद से बाहर निकल आए। मगर मीनाक्षी सब जानती थी कि मनोहर जादूगर झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरी का बदला लेने आया है और वो इस मस्जिद से बिल्कुल नहीं निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इसने देखा कि मनोहर वहाँ आलती पालती मारकर बैठ गया और अजीबोगरीब जादू करने लगा। फिर इसने जादू करके एक बड़ा काला भैंसा मस्जिद की तरफ रवाना किया ताकि मस्जिद को टक्कर मारकर दीवार तोड़ दे। मगर जूं ही इसने अपने सींग मस्जिद की दीवार से टकराए, भैंसे को आग लग गई और वो नजरों के सामने से गायब हो गया। फिर मनोहर ने एक और जादू किया। इसने एक और बहुत बड़ी बला भेजी जिसके बहुत सारे हाथ थे, बहुत लंबा मुंह था और बड़े बड़े सींग थे। इसने भी मस्जिद की दीवार से टकराना चाहा, मगर वो भी पाश पाश हो गई और जलकर खाकस्तर हो गई। मनोहर ने हैरान होकर मस्जिद को देखा कि आखिर ये क्या चीज़ है, या किसने इससे भी बड़ा जादू किया हुआ है। यहाँ जो मेरा जादू असर नहीं कर रहा। अपनी जगह से उठा और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमने लगा, शायद कोई सुराग मिल जाए कि आखिर यहाँ किसने जादू किया हुआ है। इसे ये तो पता था कि ये मस्जिद है और यहाँ सिर्फ मुसलमान इबादत करते हैं, मगर वो हैरान था कि इस वीराने में ये मस्जिद किसने तामीर की और कोई नमाजी भी नजर नहीं आ रहा, जबकि थोड़ी देर में मगरिब का टाइम शुरू होने वाला था। मगर वो कोई भी खोज लगाने में नाकाम रहा। फिर इसने सोचा कि थोड़ी देर में जब लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे तो वो इतनी बड़ी बिल्ली को देखकर खुद ही मस्जिद से बाहर निकाल देंगे, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर इसने फैसला किया कि वो यहाँ खुद बैठकर बिल्ली के निकलने का इंतजार करेगा और अगर नमाजी ना भी आए तो जब बिल्ली को भूख लगेगी तो वो शिकार करने के लिए खुद ही मस्जिद से बाहर आएगी और फिर इससे मुझसे बचना नामुमकिन होगा। दिल ही दिल में वो मकरूह हंसी हंसा। वो वहीं मस्जिद के बाहर बैठ गया जबकि इसके शैतानी मरगुले इसके इर्द गिर्द तवाफ करने लगे। बाबा रियाज शाह मुराकबे में आंखें बंद किए बैठे थे। वो मुसलसल कोई विर्द दुहरा रहे थे और अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे थे कि अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली। इनके माथे पर परेशानी और फिक्रमंदी की लकीरें फैल गईं। फिर उन्होंने विर्द करते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने जहन को वहां ले गए जो मंजर वो देखना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ये पहाड़ी इलाका है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। फिर उन्होंने एक मखलूक को भागते हुए देखा। जितना भाग सकती थी वो भूखी और प्यासी भागती जा रही थी। फिर उन्होंने शैतान को इसके पीछे भागते देखा। फिर फौरन उन्होंने अपनी आंखें बंद खोली और अपने मोकलों को बुलाया कि वो इस वीराने में एक जिन्नाती मस्जिद तामीर कर दें और इसके गिरद हिसार कायम कर दें ताकि शैतानी साए वहाँ दाखिल ना हो सकें। इन मोकलों ने कुछ ही मिनटों में मस्जिद तामीर कर दी। फिर उन्होंने दोबारा आंखें बंद की। इस बार मंजर कुछ और था। देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्ली इस मस्जिद की तरफ भागती हुई जा रही है, जबकि काले शैतानी साए इसके पीछे पीछे इसे दबोचने के लिए तैयार भागे जा रहे हैं। फिर देखते ही देखते मस्जिद की छोटी दीवार से वो अंदर कूद गई। फिर काले मरगोले बाहर आकर रुक गए। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली कि किस तरह मस्जिद के अंदर दाखिल हो सके, मगर इसका हर वार नाकाम रहा, जबकि बिल्ली महफूज मस्जिद में बैठी रह गई। पीर बाबा रियाज शाह ने अपनी आंखें खोली, जरा सा मुस्कुराए, फिर बोले, बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि खुदा के बंदों के लिए थोड़ी सी आजमाइश अभी बाकी है, जबकि कामयाबी खुदा के बंदों को ही मिलती है। फिर इसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा विर्द दोहराना शुरू कर दिया। मिस्टर जोजो से बातचीत करके मैं इस इमारत से बाहर निकल आया, क्योंकि मैं बिल्ली को ढूंढना चाहता था और इसे इस शैतान से बचाना चाहता था जो इसके पीछे गया था। जबकि मैं बाहर आया तो किसी का कुछ पता नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। दूर मैंने अहमद को देखा जो बाइक पर इधर फार्म हाउस की तरफ जानिब आ रहा था। जब वह नज़दीक आया तो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और पूछा, क्या खबर है शाह जी। मैंने इससे मुख्तसर आज जो कुछ हुआ था बता दिया। इसने पूछा, शाह जी अब आप क्या करेंगे। मैंने कहा, अभी हम वापस चलते हैं और अपने बाकी साथियों को बताते हैं और फिर आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देते हैं, क्योंकि हमें फ़ौरन निकलना होगा और बिल्ली को ढूंढना होगा, वरना वो शैतान जादूगर इसे मार डालेगा। 2 दिन की मुसाफत के बाद हम लोग बाबा रियाज शाह के आस्थाने पर मौजूद थे। थकन से चूर थे और भूख भी बहुत लगी हुई थी। ये तकरीबन दोपहर का वक्त था। अभी हमें बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा ही हुआ होगा कि हमारे लिए लंगर से खाना आ गया। खाना बहुत मज़े का था। हमने खूब पेट भर कर खाया, फिर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हम सब सुकून से बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। आज आस्थाने पर काफ़ी भीड़ थी। लोग दूर दराज से आए हुए थे। कुछ अकीदतमंद ऐसे भी थे जो बाबा रियाज शाह की सिर्फ एक झलक देखना चाहते थे। 2-3 घंटे की कठिन इंतजार के बाद हमें अंदर बुला लिया गया। हम पुरजोश होकर अंदर की जानिब बढ़े। बाबा रियाज शाह आंखें बंद किए हुए विर्द करने में मसरूफ थे। उन्होंने हमें हाथ के इशारे से बैठने का कहा, जबकि इनकी आंखें हनूस बंद थीं। हम चुप करके बैठ गए और बाबा के बोलने का इंतजार करने लगे। फिर उन्होंने चंद मिनटों के बाद आंखें खोली और कहा, इसे हमने महफूज जगह पर पहुंचा दिया है। फिलहाल वो महफूज है, मगर इसके रास्ते में हायल बड़ा शैतान अभी वहाँ मौजूद है और वो इसे हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके साथ कुछ और भी मुफाद परस्त इस तरह में हायल हैं, इसीलिए तुम्हें अब कहीं और जाना है जहाँ शैतान की जड़ें हैं, वो तुम सब लोगों ने मिलकर काटनी है, फिर जाकर तुम इसकी मदद कर सकोगे। ये कहकर बाबा खामोश हो गए।
फिर मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, बाबा हमारे लिए क्या हुक्म है? सब लोग काली इमारत जाओ, वहां जाकर इसकी कैद में एक रीछ है, इसे आज़ाद कर दो, फिर वो रीछ आगे आप लोगों की मदद करेगा। काली इमारत कहाँ है बाबा जी? वो इन दोनों मियाँ बीवी को पता है, इनको लाजमी साथ लेकर जाना। फिर बाबा रियाज शाह बोले, याद रखना तुम लोगों के रास्ते में काफ़ी मुश्किलात आएंगी, मगर मुश्किलात के सामने डट जाना, जहाँ मर्दी के साथ मुकाबला करना, फिर देखना सब मुश्किलात हल हो जाएंगी। फिर बाबा ने अहमद को तावीज़ दिया, क्योंकि हमारी टीम में से अहमद ऐसा था जिसके गले में कोई तावीज़ नहीं था। इसने बाबा का शुक्रिया अदा किया और तावीज़ गले में डाल लिया। फिर हम सब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा ने फरमाया, अभी शाम होने वाली है, तुम लोग सुबह सवेरे निकलना, इस वक्त जाना खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर आज रात चांद की 15 तारीख है, इस रात शैतान अपनी शैतानी ताकतों में ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि ये शैतानी ताकतों के मिलाप की रात है। इसलिए आप लोग सुबह सवेरे निकलना, फिर आगे आप लोगों का रास्ता काफ़ी कठिन और दुश्वार गुजार होगा। अपने ज़ात राह का इंतज़ाम कर लो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मैंने पूछा, बाबा साहब क्या आज रात हम आस्थाने में गुजार लें? हाँ, तुम लोग आज सुकून से रात यहाँ गुजारो, फिर सुबह सवेरे निकल जाना। बाबा की बात सुनकर हम सब बहुत खुश हुए और फिर कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गए, जहाँ मुसाफिरों के लिए कमरे बने हुए थे। हमने इन कमरों का रुख किया। मीनाक्षी को मस्जिद में बैठे हुए 5 घंटे हो गए थे। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था, इसे काफ़ी भूख और प्यास लगी हुई थी। फिर इसने बाहर झांक कर देखा, जहाँ मनहूस जादूगर अपने चेलों के साथ बैठा इसे घूर रहा था और इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, मगर इसने तैयार कर लिया था कि वो किसी सूरत बाहर नहीं जाएगी। फिर इसने मस्जिद का जायजा लिया, शायद कहीं से खाना या कुछ पानी ही मिल जाए। वो उठकर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में गई। इसे अच्छे से याद था कि ये मुसलमानों की इबादतगाह है। जब इसने इस मस्जिद के इर्द गिर्द हिसार महसूस किया, यहाँ कोई ऐसी अनहोनी ताकत है जो शैतानी चेलों और शैतानी रूहों को अंदर दाखिल होने से रोक रही है। इसे बहुत खुशी हुई और दिल में काफ़ी सुकून महसूस किया। फिर इसने अपनी आंखें बंद की और दिल में अपने भगवान को याद करते हुए कहा, ऐ भगवान, मैं आज भूखी हूँ और प्यासी भी हूँ, मैं बाहर निकल कर नहीं जा सकती, मेरी जान को खतरा है, मुझे भूख प्यास से नहीं मरना। ये कहकर इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकले। वो मुसलसल रोई जा रही थी और अपना दुख दर्द दिल में लिए बैठी थी। फिर अचानक इसने मस्जिद के अंदर एक आहट सुनी। वो दिल में डरी कि शायद मनोहर और इसके चेले अंदर आ गए हैं। इसने डरते डरते मस्जिद के अंदर वाले कमरे में झांका। फिर ये देखकर हैरान रह गई कि एक शख्स जिसने इसकी तरफ पीठ की हुई थी, इसने एक थाल रखा जिसमें गोश्त भरा हुआ था और एक टब में पानी रख रहा था। इस शख्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार की जानिब चलता गया और देखते ही देखते दीवार में गायब हो गया। मीनाक्षी हैरत और खुशी में गोश्त और पानी की तो जानिब बढ़ी। इसने खुश होकर खूब पेट भर कर खाया और पानी पिया, फिर भगवान का शुक्र अदा किया जिसने इसके लिए इस मस्जिद में इंतज़ाम किया। फिर वो थक हार कर इस मस्जिद में सो गई। मस्जिद के बाहर सामने मनोहर और इसके चेले हैरत से इधर उधर घूम रहे थे। इन्हें यकीन नहीं था कि बिल्ली अभी तक अंदर बैठ सकती है। इनके ख्याल में अब तक इसे भूख से मर जाना चाहिए था या शिकार की तलाश में बाहर निकल आना चाहिए था, मगर इन दोनों में से कोई भी एक काम भी नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर में ही चांद नमूदार हो गया। फिर इसके शैतानी हरकत सकनाक का वक्त हो गया। शैतानी चेलों ने इससे काली इमारत चलने को कहा। वो उठ खड़ा हुआ, फिर जोर से दहाड़ कर बोला, मीनाक्षी अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं बहुत जल्द दोबारा आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। याद रखना तुम्हारे माथे में गड़ी कील कोई नहीं निकाल सकता मेरे सिवा, और तुम्हें खुद मेरे पास चलकर आना होगा, वरना सारी जिंदगी यूं ही बिल्ली बनकर होगी।